Now in case of a pointer, we just have to deal with the 2 or 3 points, and then we will switch to the difficulty session about the 5th and 6th unit, right? Now the declaring pointer variable. Now before that we just access the pointer variable with the help of ampersand operator. Am I audible? Yes, sir. Okay. So in case, okay. So in case of C, every variable must be declared for its type that we know. Without declaring the variable, without initializing the value to the variable, we can't move further. Either you can initialize the value of variable inside the program, or you can ask to the user with the help of a printf that enter the value of that particular variable. These are the two ways. But declaration of a data type, that is a mandatory. So since pointer variables contain address that belongs to a separate data type, pointer variables pointer variables that contains the address that belongs to the separate data type, that it means it is an integer one. They must be declared as a pointer before we use them. The declaration of the pointer variable takes the following form. Now when we सर आवाज नहीं येत आहे तुमचा. आवाज कटला होता. यस Yes, सर. sir. येस येस येस. Yes, sir. नेटवर्क डिस्कनेक्ट झालं होतं. Okay, right now it is clear. यस Yes, सर. sir. Yes, sir. Okay, so declaring the pointer variable, so means once we decided that we want to use the pointer, so in that case we want a pointer variable. Now in a C, every variable must be declared for its type, that is mandatory. Since the pointer variable contain address that belong to the separate data type, data type means a pointer variable that contains the address, so it is a integer one, but still they must be declared as a pointer before they use. अब उसको यूज करने के पहले, जैसे हम फाइल के रिलेटेड अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, व्हेन वी वांट टू यूज द फाइल पॉइंटर, इन दैट केस कैपिटल में हम लिखते हैं FILE एज अ डेटा टाइप of that particular variable, file variable, correct? Similarly here we also use pointer with the help of some notations, that the declaration of a pointer variable takes the following form like this: data type, then sign of a pointer, then pointer name, correct? So data type, it may be the integer, it may be the float, correct? So when it is a float, we are saying in that case it is pointing to the float value, but the address which is stored into that particular pointer, it is integer. How it is, that we will see here. This tells the compiler three things about the pointer, means pt underscore name. First is the asterisk sign tells that the variable pt name is a pointer variable. ये हम बहुत बार देख चुके हैं पिछले 2 से 3 दिनों में. When there is a star, that is a asterisk sign, it indicates that, or it tells that the variable pointer name is a pointer variable which holds the address of another variable. Then pointer name needs a memory location, that is what the address. Pointer name needs the memory location. Then pointer name points to the variable of a type, that is a data type. जो भी एक वेरिएबल रहेगा उसका उसकी जो पोजीशन रहेगी उस पर्टिकुलर एड्रेस और या फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, टारगेट करेगा, पॉइंट करेगा, ठीक है? नाउ दिस three things that we can come from this particular data type: asterisk sign, pointer, underscore name, means pt underscore name. Now for example integer, अब integer ये तो data type that we already know, but asterisk sign p, it is nothing but the pointer variable which is an integer pointer. Declared the variable p as a pointer variable that points to an integer data type,
remember that the data type or the type integer refers to the data type of the variable being pointed by the p and not the type of the value of the pointer. यही मैंने पहले बताया था कि if I am pointing or if the variable is pointing to that variable, another variable, it doesn't mean that it will points to their integer data type. It will point to their address. Correct? हम क्या पॉइंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार पी? वी आर पॉइंटिंग टू द एड्रेस. रिमेंबर दैट द टाइप इंटीजर रेफर्स टू द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल. ये क्या है? डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल है एंड इट इज नॉट बीइंग पॉइंटेड बाय पी और इट इज पॉइंटेड बाय द पी एंड नॉट द टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ पॉइंटर. यानी पॉइंटर की जो वैल्यू होगी, पॉइंटर क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर करता है. तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि इंटीजर स्टार पी, इंटीजर और फ्लोट स्टार एक्स, ये अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में फिर पॉइंटर में वैल्यू यानी एड्रेस की वैल्यू डेसिमल प्लेसेस में कैसे क्या आ गई? बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. द वेरिएबल विच वी आर यूजिंग लाइक अ इंटीजर a b c d and we are using the star p which points to the integer a. यानी ये जो हम देख रहे थे, here we are having few variables that quantity is a one variable. Quantity is a one variable whose data type is integer. इसका data type क्या है? इसका data type integer है. ठीक है. But their address will be stored into the variable pointer variable p. So if we declare this pointer variable like a integer star p, it means that this pointer variable is pointing to the some variable like a quantity and their data type is integer. It is not the pointer p's data type. pointer p का खुद का कोई data type नहीं होता है, उसका data type खुद का ही pointer ही है itself. pointer variable itself having their own data type. It will not borrow any kind of data type from the C. Correct? Similarly, when we are declaring the float star x asterisk sign x, it is the float pointer. Now declare the x as a pointer to a floating point variable. यानी ये जो स्टार एस्ट्रिक साइन x है, ये ऐसा पॉइंटर है कि जो हमेशा फ्लोटिंग वैल्यूज जिस भी वेरिएबल में होगी उसको वो पॉइंट करेगा. करेक्ट? जैसे अगर हम देखते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर जो रहते हैं, न्यूज़पेपर या फिर मीडिया हाउसेस रहते हैं, दे आर पॉइंटिंग टू द गवर्नमेंट. कुछ न्यूज़पेपर और कुछ मीडिया हाउसेस दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट डन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. नाउ इट completely depend upon their policies that they have decided. कुछ ऐसे फॉरेन के अखबार हैं जो हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं. दे ऑलवेज क्रिटिसाइज बट दे नेवर appreciate that when we launch 105 satellites 104 satellites by the ISRO, they just say that कि अब ये जो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये अब इलाइट क्लब में आने की कोशिश कर रही है. इलाइट क्लब मीन्स देर इज़ अ वन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्लब ऑफ 4 to 5 कंट्रीज एंड दैट वाज कॉल्ड एज इलाइट क्लब. तो इंडिया ये ट्राई कर रहा है खुद ऐसे नए नए मिशन लॉन्च करके कि वो इस क्लब का मेंबर हो जाए. ठीक है. दे क्रिटिसाइज द सक्सेस इज ऑल्सो बीइंग क्रिटिसाइज बाय द सम न्यूज़पेपर, but some newspaper that appreciates this particular work, even if from some enemy countries, we don't know the name of our enemy countries, they also appreciate this task. Why? Because in the history of a human, no other country that launches that much of satellites in a one stroke. एक ही स्ट्रोक में इतने सारे सैटेलाइट्स किसी ने भी लॉन्च नहीं किए और बहुत ही कम पैसों में ये ऑपरेशन मिशन परफॉर्म किया गया था. ठीक है. उसके बाद बहुत से ऐसे मिशन हैं कि जो इसरो ने परफॉर्म किए, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आज हमारे पास वैक्सीन है, खुद की वैक्सीन है. बहुत सारे ऐसे देश हैं लाइक जापान,
Japan is not having their own vaccine. Even if Korea, North Korea, South Korea, then few countries like we are having very rich countries, they don't also have their own vaccine. यूरोप यूनियन में जो भी ऐसी कंट्रीज है जो डेवलप्ड है, पूरी तरह से डेवलप है, स्टिल दे आर नॉट हैविंग देयर ओन वैक्सीन. करेक्ट. बट इंडिया इज हैविंग देयर ओन वैक्सीन मेड इन इंडिया, कोवैक्सीन, एंड कोलैबोरेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोविडशील्ड, डेवलप अंडर द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. सो ये जो सारी चीज़ें हैं, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, some newspaper that are targeting to the India, some newspaper that are encouraging the development of a nation, development of a India, right? So these are the two different one. So here in this case we are having the integer, we are having the float, but their pointers, that means star p and star x. So star p is always pointing to the such a variable which holds the integer value. ये जो स्टार पी है वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर वैल्यू जो भी वेरिएबल में होगी उसको पॉइंट करेगा. ठीक है. एंड दैट वी हैव टू मेंशन इट. ऐसा नहीं कि सभी को पॉइंट करेगा, वन बाय वन ही पॉइंट करेगा डेफिनेटली, बिकॉज एट अ वन टाइम पॉइंटर वेरिएबल होल्ड्स अ वन एड्रेस. करेक्ट. कोई और एड्रेस वो होल्ड नहीं कर सकता, एक बार एक ही एड्रेस होल्ड कर सकता है. देन फ्लोट एस्ट्रिक साइन x यानी फ्लोट पॉइंटर x, ये अगर है तो पॉइंटर x ऑलवेज पॉइंट्स टू द सच अ वेरिएबल विच होल्ड्स द फ्लोट वैल्यू. करेक्ट. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. सर कैन यू रिपीट फ्लोट, मतलब वो फ्लोट होल्ड्स व्हिच वैल्यू? या व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंटर नेम, ये जो पॉइंटर नेम है उसके आगे हमने डेटा टाइप लिखा है. सो दैट डेटा टाइप इज नॉट dedicated to this pointer variable, it is dedicated to the such a variable who is holding the value and to whom pointer variable points. Correct. ओके ओके, जैसे अंडरस्टैंड. मैं अगर बोलता हूँ, मेरा कोई दोस्त है और मुझे पूछ रहा है कि यार मुझे भूख लगी है तो मुझे रेस्टोरेंट में जाना है. ठीक है. सो आई विल आस्क हिम वेज, नॉन वेज, लंच, ब्रेकफास्ट, क्या करना क्या है, साउथ इंडियन या फिर खाना खाना है डायरेक्ट यानी थाली बेस. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल टेल हिम यू जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है. जैसे कोई होटल मैं उनको बता दूंगा या फिर कोई प्लेस बता दूंगा, ढाबा बता दूंगा, या जो भी है साउथ इंडियन या फिर जो भी है वेज नॉन वेज जो भी है. ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम टेलिंग हिम एग्जैक्ट लोकेशन व्हाट यू वांट, और उस लोकेशन के हिसाब से वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे. ठीक है. अगर उन्होंने बोला कि मुझे लंच करना है, ठीक है, वेज, तो मैं उनको कोई नॉन वेज रेस्टोरेंट बताऊंगा क्या? डेफिनेटली नॉट. विच इज़ अ रॉन्ग पॉइंटर और विच इज़ अ रॉन्ग रेफरेंस एक्चुअली. आई एम टेलिंग द एड्रेस एंड एड्रेस इज नथिंग बट द रेफरेंस. एंड ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट वी आर हैविंग द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. ये दो कंसेप्ट आते हैं हमारे इसमें पॉइंटर के इसमें. कॉल बाय वैल्यू यानी जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ है, on the basis of that we are calling the particular function or the variable on the basis of their data, call by value. And if we know the address of that variable we will call with a reference, and reference is nothing but the address of that particular variable. So these are the two terms, call by value and call by reference. So here we are declaring the pointer variable like a integer, so it will always point to the integer variable, integer constant. Then float pointer, it will always point to the float. अब उसमें कभी कैरेक्टर भी हो सकता है, कैरेक्टर पॉइंटर जो हमेशा कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, बट उसमें जो वैल्यू रहेगी दैट ऑलवेज अ रेफरेंस, दैट ऑलवेज अ एड्रेस, और एड्रेस हमेशा हमेशा इंटीजर वैल्यू ही हो सकती है. वो कभी डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि आप मेमोरी को डिवाइड नहीं कर सकते हो डेसिमल प्लेसेस पे. ठीक है. ऐसा कोई कर सकता है कि हमारा जो घर है, ठीक है, उसको हमने बीच से काट दिया. इज इट पॉसिबल 4 पार्ट्स में?
No, sir. वर्चुअली वी No, कैन डू sir. इट, वर्चुअली वी कैन डू इट कि ये दो रूम इधर राइट हैंड साइड में, दो रूम लेफ्ट हैंड साइड में, with the help of a wall. ठीक है, but in a present situation we can't cut your house into the number of pieces, like that you can't cut the memory into the number of pieces. एक मेमोरी का जो सेल है उसको आप नंबर ऑफ पीसेस में ब्रेक नहीं कर सकते हो. ठीक है, दैट कैन बी मेड पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है. ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको उस प्रकार से बताना पड़ेगा कि हाउ मच ऑफ डेटा दैट वी कैन स्टोर. वो डिपेंड करता है स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस के ऊपर, दैट वी कैन, जो CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने को मिलेगा इन थर्ड ईयर, प्रोबेबली इन सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो उसमें आपको वो रहेगा. बट राइट नाउ वी कांट ब्रेक द मेमोरी into the sub parts. Correct. So this is what exactly the declaring the particular pointer, right? Now there is one example that they want to put over here. Simple example. The declaration causes the compiler to allocate a memory location for the pointer variable p and x. p जो है वो इंटीजर वैल्यू को पॉइंट करेगा जहाँ पे भी होगी, x जो है वो फ्लोट वैल्यू को पॉइंट करेगा. Since the memory location have not been assigned any values, these locations may contain some unknown values in them and therefore they point to the unknown location shown in the figure. अब ये मैं अगर डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर स्टार p, अब वो किसको पॉइंट करेगा? सो दैट विल बी पॉइंट टू द अननोन और पॉइंट्स टू द अननोन लोकेशन, कोई तो भी अननोन लोकेशन को पॉइंट करेगा एंड विच कंटेन्स द गार्बेज वैल्यू. जनरली अगर आप इंटीजर a को डिक्लेयर करते हो और उसको प्रिंट कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? गार्बेज वैल्यू. ठीक है, सिमिलरली इफ योर पॉइंटर इज ऑल्सो यूज्ड विदाउट टारगेटिंग टू द नॉर्मल वेरिएबल के ऊपर आपने पॉइंट किया ही नहीं, उसको असाइन किया ही नहीं, in that case it will definitely point to the some unknown location and just because of that it will contain the garbage value. It will not hold the actual address, it will hold the garbage value only. Then पॉइंटर डिक्लेरेशन स्टाइल. अब अलग अलग प्रकार से हम उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं. पॉइंटर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड सिमिलरली एज द नॉर्मल वेरिएबल एक्सेप्ट फॉर द एडिशन ऑफ द यूनरी स्टार ऑपरेटर. एस्ट्रिक साइन बोलते हैं उसको अपन, जनरली हम उसको स्टार बोलते हैं बट इट इज एस्ट्रिक साइन. दिस सिंबल कैन अपीयर एनीवेयर बिटवीन द टाइप नेम एंड द प्रिंटर यानी ये हमारा प्रिंटर जो होता है जो कॉपीज निकालता है वो वाला नहीं, प्रिंटर वेरिएबल नेम दैट इज अ पॉइंटर वेरिएबल नेम. ठीक है, तो बुक में भी गलतियाँ होती है तो थोड़ा सा संभल के हमको लिखना है. ये अगर प्रिंटर वेरिएबल नेम लिखोगे तो मे बी वो गलत होगा, बट इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल नेम. अंडरस्टूड? Yes, sir. So this symbol can appear anywhere between the, an asterisk sign can we put in a integer then asterisk sign and then p, then integer then asterisk sign, that will with the p, then integer then asterisk sign and then there is a small space, one space is there and then p. So these are the three styles. If the question asked into the MCQ integer p star, यानी ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया the question was like this, integer p star, और वहाँ पे उन्होंने पूछा whether this declaration is correct or wrong, right? So this style is or this declaration is prohibited, it is not allowed, because when we are saying that it is a pointer variable, the asterisk sign should be in between the data type and the pointer variable. दोनों के बीच में कहीं पे भी रह सकता है, but it is in between two. ठीक है, then the style 2 is becoming increasingly popular due to the following reason. This style is convenient to have a multiple declaration in the same statement. क्योंकि हम पीछे रखते हैं पॉइंटर, एस्ट्रिक साइन जो है हम पीछे रखते हैं, इसकी वजह से आप मल्टीपल सिम्बॉल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो. जैसे यहाँ पे है
pointer P, then X, then pointer Q. This style matches with the format used for accessing the target values like integer x star p comma y, x equal to 10, p equal to एम्परसेंट ऑफ एक्स. अब ये डिक्लेरेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटीजर एक्स, एक्स इज द नॉर्मल वेरिएबल. Star p, it is a pointer variable. Y, it is again the normal variable. Now x holds the value 10. It means that 10 is stored in the memory location. कोई तो भी memory location होगी XYZ, वहाँ पे ABC होगी, ABC memory location होगी, वहाँ पे क्या होगा 10 will be stored and उसका label क्या रहेगा memory का X 10 और एक address रहेगा PQR for example. ठीक है. So p equal to pointer p equal to ampersand x. ampersand x means address of x जो हम scanf में भी देखते थे. करेक्ट. printf scanf में हम जब वैल्यू रीड करते थे, राइट करते थे, तो उसमें आप scanf में क्या लिखते थे ampersand x. So here p is holding address of x. x is holding 10. p is holding address of x. Now what we are trying to do, accessing the x थ्रू द p. तो उसको हमने क्या कर दिया, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है, पॉइंटर वेरिएबल ने जो वैल्यू स्टोर की है उसका जो एड्रेस है वो हम y में दे देते हैं. y इक्वल टू स्टार p मीन्स पॉइंटर p. सो अल्टीमेटली y में क्या आ गया, The address of pointer p. द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर p. ठीक है. एंड नाउ we will give the star p equal to 20. That means assigning 20 to the x. ये बात समझ लीजिए. सबसे पहले पहली स्टेप ने हमने क्या किया, x equal to 10. 10 will be stored on a address of a x ampersand x. Suppose that it is a address 1010. ये कोई तो भी एड्रेस है उसका 1010. Now 1010 which is the value of a p. p की क्या वैल्यू है 1010 and star p is what, pointer variable. Address of pointer p. It is a pointer variable which points to the p variable. करेक्ट. अब वो क्या स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा एड्रेस एंड दैट एड्रेस विल होल्ड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू उसमें है, क्योंकि एड्रेस अगर मिल गया तो वैल्यू तो मिल ही जाएगी ना आपको. इफ़ यू नो द एड्रेस, जैसे अब ये जो पुलिस चोर का रहता है, अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि चोर यहाँ पे छुपा हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन यानी क्या रहती है, वो एड्रेस ही रहता है. दे गो देयर एंड कैच दैट पर्टिकुलर थीफ, राइट. अब जो एड्रेस देता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीफ के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, खबरी. हाँ, खबरी. खबरी, ठीक है, जो इन्फॉर्मर रहता है. करेक्ट. इन्फॉर्मर gives that particular location to the police. So informer is acting as pointer variable. Am I right? Yes, sir. Informer is acting as a pointer variable which holds the address of a चोर. चोर का एड्रेस जो है वो किसके पास है और किसको पता है, इन्फॉर्मर को. सो इन्फॉर्मर विल गिव दैट एड्रेस टू द पुलिस. करेक्ट. तो ये जो मैकेनिज्म है यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं y इक्वल टू स्टार p. तो स्टार p विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ p एंड p में क्या आएगा, एड्रेस ऑफ x. एंड ये सारी चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, y में. ठीक है. सो y इज हैविंग द वैल्यू 10 इनिशियली. नाउ दिस स्टार p, इसमें भी एड्रेस है. अब इस एड्रेस के ऊपर हम क्या करेंगे, 20 को असाइन कर देंगे. 20 विल बी असाइन टू द एड्रेस पॉइंटर p. तो पॉइंटर p क्या है, ये भी एक एड्रेस ही है ना. करेक्ट. सो असाइनिंग 20 टू द x. हाँ, यस सर पॉइंटर p तो मतलब वो एड्रेस ऑफ x है ना. पॉइंटर p एड्रेस ऑफ x नहीं है.
एड्रेस ऑफ x विल बी स्टोर्ड इन अ p वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल है p वेरिएबल, ठीक है। अब वो जो p वेरिएबल है दैट विल एक्ट इन नेक्स्ट स्टेप एज अ पॉइंटर वेरिएबल। यहाँ पे ये जो लाइन है, लाइन नंबर 3, इट इज अ एक्टिंग एज अ एड्रेस स्टोरेज। p में सिर्फ एड्रेस स्टोर होगा, बट यहाँ पे स्टार p जब भी हम बोलेंगे इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल विच पॉइंट्स टू द x। ये क्या कर रहा है, x के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, x को नहीं पॉइंट कर रहा, x के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और वो एड्रेस वहां से वो y में भेज रहा है, यानी एड्रेस नहीं भेजेगा, वो वैल्यू भेजेगा, ठीक है। वंस वी गिव द वैल्यू टू द y, द वैल्यू ऑफ y बिकम्स 10। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंटर, ये जो वैल्यू है यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस रहना यानी क्या है, तो वैल्यू रहना, ये सब सबसे पहले याद आप समझ लीजिए। बिकॉज एड्रेस के ऊपर आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो, एड्रेस से आप ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ना कैलकुलेशन कर सकते हो। वी रिक्वायर द वैल्यूज, आइदर इट इज इंटीजर और फ्लोट और एनीथिंग, ठीक है। एड्रेस का यूज इसलिए कर रहे हैं हम इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टाइम टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर वेरिएबल। वेरिएबल को ढूंढने के लिए जो लगने वाला टाइम है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम एड्रेस और पॉइंटर का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो लास्ट 2 स्टेप्स, दैट इज व्हाट, असाइनिंग द x थ्रू द p। अब ये p स्टार बोला उन्होंने, p स्टार इट मीन्स, सॉरी p स्टार नहीं है, इट इज अ कमेंट वन, accessing the x through the p is what, a variable. In this step it is acting as a pointer variable which holds the address of a x। यहाँ पे जो एड्रेस है इसके पास वो x का एड्रेस है, ये जो अंडरलाइन बोल्ड में जो है y इक्वल टू स्टार p, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ x एंड दैट वी आर गिविंग टू द y। बट y एड्रेस स्टोर करेगा क्या, नहीं। सर 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 यस। सर बस एक डाउट है, मतलब जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा था कि एक्स मतलब एक्स इज हैविंग अ पर्टिकुलर एड्रेस व्हिच इज स्टोर्ड इन पी, then star p generates a particular value which is stored in y। ओके, बस ऐसा ही पूछना था, ऐसा ही है ना ये? yes, star p will having a one particular address which is address of a x and that address is given to the y। it just mean that we are giving the value of x to the y। जो हम x इक्वल टू वाई करते या फिर y इक्वल टू एक्स करते, वो अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि a इक्वल टू 55 है, मगर a की वैल्यू मुझे b में डालनी है, b में पुट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, b इक्वल टू a कर दूंगा। तो पॉइंटर के थ्रू वही आप यहाँ पे कर रहे हो, x की वैल्यू y को दे रहे हो और y की वैल्यू अपडेट कर रहे हो, x की वैल्यू अपडेट कर रहे हो और y की वैल्यू आप x असाइन कर रहे हो एज अ 10, right? So here in Yes sir. this case star p, which is the address that holds the value 20, which will be assigned with this particular statement, correct? So in that case we use the particular second style, integer star p, which is a pointer variable. Now up to that what we are doing, we are just declaring the particular pointer variable, ये declaration है। Now we will do the initialization of the pointer variable। सो सी द एग्जाम्पल लाइक क्वांटिटी, ये इसके पहले भी हमने देखा है क्वांटिटी वाला एग्जाम्पल, इंटीजर क्वांटिटी एंड देन इंटीजर स्टार पी। तो ये इंटीजर क्वांटिटी इट इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल, इंटीजर स्टार पी इट इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द विच डेटा टाइप, integer star p which points to the always which kind of data type, anyone? Integer star p which always points to the integer data type. If there is a float
variable and which is having a float value. As it is declare float, it will hold the float value, but this star p will not point to that particular float variable. It will always points to the integer variable. अगर मैंने यहाँ पे integer quantity then semicolon float price ये अगर लिखता हूँ तो ये जो स्टार पी है ये जो फ्लोट प्राइस है उसको कभी भी पॉइंट नहीं करेगा, उसका एड्रेस कभी भी होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज दैट एड्रेस कंटेन्स द float value, right? So here integer star p will holds the integer value, right? Then p equal to, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिक्लेरेशन दैट वी नो, डिक्लेरेशन इज वेरी सिंपल. इंटीजर स्टार p, it is a declaration, but p equal to ampersand quantity, that means address of a quantity will be stored into the pointer variable here in the p. So we can also combine the initialization like this, integer star p equal to ampersand quantity. ये दो स्टेप में भी लिख सकते हो आप. Instead of writing a 2 steps, we can directly write like this. So we can write over here comment declaration and initialization of a pointer variable integer star p equal to ampersand quantity. So ampersand quantity का मीनिंग क्या हो गया कि क्वांटिटी का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, पॉइंटर p में. So pointer p holds only the address of which data type, it is a integer data type. तो एक बात फिर से आप ध्यान में रखिए कि इंटीजर जब भी या फिर फ्लोट जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल के सामने लिखते हो तो वो उसका खुद का डेटा टाइप नहीं है, वो उस वेरिएबल का डेटा टाइप है जिसको पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट कर रहा है. और वो पॉइंटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें ऐसे बहुत से वेरिएबल्स को एक्सेस करना पड़ सकता है आगे जाके. सो इंस्टेड ऑफ दैट देयर नेम विल बी द सर्चिंग पैरामीटर, यानी सर्च करना है किसी वेरिएबल को तो आप नेम से सर्च करोगे. तो इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज अ कंफ्यूजन एंड टाइम कंज्यूम फॉर सर्चिंग. सो वी विल हैव अ एड्रेस. once we will get the address, you can immediately find out the particular variable and their data, right? So it is allowed. The only requirement here is that the variable quantity must be declared before the initialization take place. उसका initialization ज़रूरी है. Correct? Understood the initialization of pointer variable? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now pointer flexibility. Okay. Right now accessing a variable through its pointer. अब हमको उसको access भी करना है, ठीक है. So how we can access it? Shortly we will see it. Once the pointer has been assigned the address of a variable, वेरिएबल है एक नॉर्मल वेरिएबल, उसका एक एड्रेस है, अब वो हमने असाइन कर दिया एक पॉइंटर वेरिएबल को, ठीक है. द क्वेश्चन रिमेन्स एज हाउ टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यूजिंग अ पॉइंटर. हमने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया, उसमें एक वैल्यू ली और उसका एक एड्रेस है, वो एड्रेस हमने असाइन कर दिया एक पॉइंटर वेरिएबल को. अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंटर वेरिएबल्स के थ्रू एड्रेस एक्सेस करके आप उस नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू कैसे एक्सेस करोगे. समझ में आया? पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस है उसका इस्तेमाल करके आप नॉर्मल वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की गई है उसको एक्सेस कैसे करोगे. यानी जैसे नॉर्मली हम सीधे हाथ से खाना खाते हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा हाथ टेढ़ा करके खाना खाने वाले हैं, ठीक है. और इस पर्टिकुलर चीज़ को सी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है. तो एक क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है दिमाग में कि ये पॉइंटर कंसेप्ट नहीं होता था तो क्या फिर सी अच्छी नहीं रहती थी, ठीक है. बट टाइम कंज्यूम विल बी मोर and efficiency will be very less, and maybe after a 10 or 12 years later C will be flush out from the world of programming. but pointer के concept की वजह से C exist है, और उसी प्रकार से जैसे structure है, array है, ये भी उसमें contribute करते हैं. not only the pointer but it is one of the part just because of the C is there. now how to access the value of the variable using a pointer. This is done by using the another
unary operator, again वही asterisk sign, usually known as a indirection operator. ये क्या है? indirection operator. अब इसको स्टार भी बोला जाता है, asterisk sign भी बोला जाता है, indirection operator भी बोला जाता है. Again it is a question of a MCQ. Star is known as which operator? Assignment operator, then इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, या फिर उसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर, नन ऑफ द अबव. ठीक है, ऐसा एक आधा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, सो यूजुअली इट इज नोन एज अ इनडायरेक्शन ऑपरेटर. कसा सर? कोण काय काय म्हणजे प्रश्न कसा येणार? क्वेश्चन विल बी लाइक दिस. स्टार is also known as fill in the blank operator. ठीक है, so it is also known as a unary operator, that is a sign of particular star, but it is also known as an increment multiplication operator, it is also known as a binary operator, it is also known as a ternary operator, it is also known as a shift operator, and it is also known as a indirectional operator. ऐसे कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे और उसमें से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है, दैट इज व्हाट? indirection operator, because we are using that particular asterisk sign unary operator for a pointer concept. ठीक है, इसके अलावा हाँ यस सर अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि मतलब जो ऑपरेटर है, मतलब ये जो स्टार ऑपरेटर है, उसमें अगर क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें इंडायरेक्शन ऑपरेटर भी नहीं है ऑप्शन में और ये भी नहीं है, मतलब एस्ट्रिक भी नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये आंसर करेक्ट है क्या? नहीं, मल्टीप्लिकेशन नाम का कोई ऑपरेटर ही नहीं रहता, इट इज अरिथमेटिक वन. तो फिर उसका आंसर क्या रहेगा? इनडायरेक्शनल ऑपरेटर अगर ऑप्शन में है तो, नहीं है तो नन ऑफ द अबव, ये अगर ऑप्शन में है तो, और अगर वो भी नहीं है तो इट इज अ यूनियरी ऑपरेटर. ओके, करेक्ट. सर मैं ये भी कंफ्यूज था कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है कि नहीं. नहीं नहीं, ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं रहता है, इट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन एंड मॉड्यूलस, दैट आर इन अ वन यूनिट, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. नहीं तो फिर तो ऐसा हो जाता था कि एक एडिशन ऑपरेटर, एक सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन और एक मॉड्यूलस ऑपरेटर, 5 अलग अलग, but they are combined under the arithmetic operator. Another name for the indirection operator is dereferencing operator. अब ये भी है, यानी एक सिंपल स्टार को जिसको हम मल्टीप्लाई करके अब तक के यूज करते थे, मल्टीप्लिकेशन साइन करके यूज करते थे, उसी स्टार को सी में यूनरी ऑपरेटर भी बोला जाता है, एस्ट्रिक साइन भी बोला जाता है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोला जाता है, एंड डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोला जाता है. और ये सारे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि कंसेप्ट ऑफ ऊप्स है. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक इंसान और एक चीज विल परफॉर्म, वन पर्सन विल परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस. करेक्ट. जैसे हम देखते हैं कि MBBS ये जो डिग्री है डॉक्टर की, और MD ये जो डिग्री है, MD मेडिसिन, ठीक है, तो MD मेडिसिन ये डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट गया तो उसका इलाज कर सकता है. ठीक है, बट MD न्यूरोलॉजिस्ट, MD गायनाकोलॉजिस्ट, MD और कुछ भी होंगे उसमें ब्रांचेस, अगर ऐसा स्पेसिफिक है तो उसके पास उस रिलेटेड ही लोग अगर जाते हैं उस पर्टिकुलर बीमारी के रिलेटेड, तो ही उनको वो डायग्नोसिस कर सकता है. बट द MD मेडिसिन, दिस कोर्स इज डिजाइन इन सच अ वे दैट सर के बाल से लेकर तो पैर के नाखून तक पूरी बॉडी का स्टडी MD मेडिसिन वाले कैंडिडेट स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, डॉक्टर को करना पड़ता है. सो दैट सिंगल मैन विल गिव द मेडिसिन फॉर द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ बॉडी. अगर सर दुख रहा है तो सर के लिए भी, अगर हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, बोन में कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए भी, पेट में गड़बड़ है तो उसके लिए भी, लीवर, देन हार्ट, देन लंग्स, एनी बॉडी पार्ट. ठीक है, तो सिंगल पर्सन कैन परफॉर्म द मल्टीपल डायग्नोसिस सिस्टम, मल्टीपल डायग्नोसिस कर सकता है, मल्टीपल ऑर्गन डायग्नोसिस. तो दिस कंसेप्ट इज नॉन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म. ये कुछ अलग पार्ट है, बट हमारा जो ये स्टार है, स्टार के जो अलग अलग नाम हैं वो रहता है ना हमारे यहाँ पे, उर्फ, मराठी में रहता है ना उर्फ,
बाड़ा साहेब उर्फ माधव, वो जनरली मैरिज कार्ड जो रहते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है, 2 नाम्स रहते हैं, लड़की का भी 2 नाम और लड़के के भी 2 नाम। एक रहता है नॉर्मल जो घर में यूज़ होने वाला है, और एक रहता है नाम जो डॉक्यूमेंट्स पे रहता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे। सो यहाँ पे भी एस्ट्रिक साइन उर्फ यूनरी ऑपरेटर उर्फ इनडायरेक्शन ऑपरेटर उर्फ डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, यानी एक ही स्टार के अलग अलग नाम्स हैं और वो क्वेश्चन में मे भी आ सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव वन स्टेटमेंट इंटीजर क्वांटिटी। दिस वन इज इंटीजर क्वांटिटी। एक नॉर्मल वेरिएबल है क्वांटिटी और एक एन वेरिएबल है नॉर्मल, एंड एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, पी क्वांटिटी इज 179, सेम एग्जांपल इसके पहले देखा है हमने। p इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ क्वांटिटी, यानी 179 जिस भी एड्रेस पे स्टोर होगा दैट एड्रेस विल बी असाइन टू द p वेरिएबल, एंड द स्टार ऑफ p ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। अब वो स्टोर कर रहे हैं आप n में, n क्या है तो इंटीजर है। ठीक है, अब n क्यों इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर के सिवा कोई एड्रेस रहता ही नहीं है, इसलिए वो इंटीजर है। करेक्ट। जो हमने ऑनलाइन में एड्रेस देखा था एक्चुअली, सो उसमें कैरेक्टर्स भी थे, इंटीजर भी था। ठीक है, ऑनलाइन जो एड्रेस फाइंड आउट किए थे हमने वेरिएबल के, बट व्हेन वी आर यूजिंग इन ए सिस्टम मोस्टली 100%, नॉट 99%, 100% वी विल गेट द एड्रेस एज अ इंटीजर नंबर। वो ऑनलाइन में कुछ अलग बता रहा था, अलग अलग एड्रेसेस, बट जब आप सिस्टम पे प्रोग्रामिंग करते हो तो मोस्टली उसमें इंटीजर बेस एड्रेस आपको मिलता है। करेक्ट। Now this will be the part of accessing the variables through its pointer। इसके थ्रू आप क्या करते हो, एक्सेस करते हो वेरिएबल को, और उस वेरिएबल के साथ आपको वैल्यू भी मिल जाती है। यानी 179 को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो पहले आपको उसके एड्रेस को लेना पड़ेगा, फिर वो एड्रेस वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। देन इफ़ यू प्रिंट, ये लाइन के बाद अगर आप प्रिंट करते हो n इक्वल टू स्टार p के बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट लेते हो और वैल्यू ऑफ n अगर प्रिंट करते हो, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n इज 179। करेक्ट, ये यहाँ पे है, दस द वैल्यू ऑफ n वुड बी 179। ये पूरा का पूरा पढ़ने से अच्छा मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, द वैल्यू ऑफ n विल बी द 179। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. सो दैट Yes, sir. हियर वी एंड्स द पर्टिकुलर। ये एक्चुअली मैंने स्किप इसलिए किया है चेन ऑफ अ पॉइंटर, क्योंकि ये हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये जो अभी एग्जांपल लिया था मैंने, ये पेंट में जो लिखा हुआ था ना, स्टार ऑफ स्टार पी स्टार स्टार क्यू स्टार 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 एस, तो वही वो है चीज़ चेन ऑफ पॉइंटर। दैट इज व्हाट वेरिएबल विच पॉइंटेड बाय द p1 विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ वैल्यू वेरिएबल, देन p2 होल्ड्स द एड्रेस ऑफ p1 एंड सो ऑन। यहाँ पे p3 भी रह सकता है, p4 भी रह सकता है, p5 भी रह सकता है, ऐसे बहुत बड़ी चेन हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ नथिंग बट द नेस्टिंग चेन है, यानी उसको हम नेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एड्रेस के अंदर एड्रेस, एड्रेस के अंदर एड्रेस स्टोर करते करते जाता है। ठीक है, सो दिस वन इज द चेन ऑफ अ पॉइंटर। ठीक है, देन देर इज अ pointer increment and scale factor, okay, no problem, pointers and arrays, okay. So up to this we have completed our 6th unit. ठीक, now any question regarding to the 5th and 6th unit? Saharsh, structure, okay. Sarvesh, Sir, initializing structures, then assignment statements using structures, then accessing members of structures, that exactly, is dot operator, arrow operator. exactly. So if you want to tell the definition of a structure, then Service structure. yes, Sir, yes Mrunmay. sir, it is a user-defined data type in C language which allows to combine data. Yes, it is a user defined data type
which is having different data types variable declaration in a one unit, उसको हम बोल सकते हैं. Because of that, what happened, the complete data which is declared under the structure will stored in a consecutive memory allocation. Because array में क्या होता था, array will only holds a single data type, but structure can holds the multiple data types. Character भी हो सकता है, integer भी हो सकता है, float भी हो सकता है, double भी हो सकता है. Correct? That is what are exactly the structure. Right? Now in the case of a 6th unit, we are having the user defined function. Correct? So user defined function, उसका क्या purpose हो सकता है? What is the purpose of user defined function? Why we require the user defined function? In a single line, we can say that user defined functions are those functions which are not provided by system, but with the help of user defined function we can enhance the performance of a C language and get facilitate with the advanced things in a C language. ये हम बोल सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की वजह से हमको एज ऑफ डूइंग द प्रोग्रामिंग को हम इजीली कर सकते हैं. ये चीज़ आपको प्रोवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है. अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में और कौन से फंक्शंस हमने देखे हैं या टॉपिक्स कौन से देखे हैं 6th यूनिट में? मल्टी फंक्शन प्रोग्राम एग्जैक्टली. उसमें मल्टीपल फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं. और एक बड़ा एडवांटेज है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, दैट इज इफ यू वांट टू कैलकुलेट such as area or circumference or perimeter or complex problem solving repeatedly, in that case we have to repeatedly type or program and execute same block of a statement. Instead of that we have to declare that as a function. उसको हम क्या करेंगे, एक फंक्शन करके डिफाइन करके रख देंगे void main के बाहर, और जब जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम उसको कॉल करेंगे इनसाइड अ मेन फंक्शन. करेक्ट. सो दैट इज अ बेस्ट यूज ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. reusability of a code that can be implemented with the help of a user defined function. ये हम बोल सकते हैं. अगर वाइवा में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, देन वी कैन से दैट with the help of a user defined function we can achieve reusability of program or the coding or the instructions set of code. Correct. Then other content of a 6th unit, anyone remember? फंक्शन कॉल्स. अब ये फंक्शन कॉल कौन बताएगा? वीडियो देखे हैं बहुत से लोगों ने. हु विल टेल द फंक्शन? हाँ, यस सिमरन. एक्चुअल पैरामीटर्स है सर उसमें. यस एग्जैक्टली. व्हेन वी आर यूजिंग अ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, some variables are declared inside the main class, some variables are declared inside the function which is written outside of a main class. अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि अगर एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया है मेन क्लास के अंदर और उसका स्कोप जो रहेगा वो विद इन अ कर्ली ब्रेसेस ही रहेगा. अगर एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है लोकल वेरिएबल विद इन अ फंक्शन विच इज आउटसाइड ऑफ अ मेन फंक्शन के बाहर है, जैसे प्रिंट लाइन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन के बाहर उसका डेफिनेशन है, उसमें अगर कोई लोकल वेरिएबल यूज कर रहे हो आप तो उसका भी स्कोप विद इन अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस में रहेगा. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन कॉल
what we does, we can access that variable inside the main class or inside the function body with the help of a function call. आप उसको function को भी call कर सकते हो, variable को भी आप access कर सकते हो, ठीक है, with the help of parameter. So parameterize function रहते हैं, non parameterize भी function रह सकते हैं, ठीक है. Then next topic, function declaration. which one? Declaration. Declaration of a particular function. Declaration of function consists of data type, then function name, and then parameters. If there is no data type, then it is a void. We can put the void. अगर नहीं लिखते हो तो integer consider करेगा. Then if there is no parameter, don't keep blank. जो functional bracket है उसको blank keep मत करो, उसको आपको void लिखना है. Then inside the body of the function or the declaration of a function that consists of local variable declaration, printf, scanf statements, if, while loop that we can contain, and then there is a return structure or return type was there. If there is a value will be returned. Okay. Then again initialization of function is just what we just have to assign some array और सम साइज अबव द मेन क्लास, यानी हम फंक्शन को जब डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं तो वो मेन बॉडी के मेन फंक्शन के बाहर करते हैं, बिलो द मेन फंक्शन. बट अबव द मेन फंक्शन वी डिक्लेयर द फंक्शन विथ अ वॉइड फंक्शन नेम and the parameter, and then semicolon must be there. Semicolon is very very important when you declare the function above the main function, correct? Then next topic, Modular Introduction to file programming. management. मृन्मयी. Modular programming. Modular programming, we can divide the particular program into the number of small parts that called as a one module, and we can combine that module and form a one big structure of a program which is known as the application or the software, correct? Sarvesh. Introduction to file management and its functions. Introduction to the file management. Now when we are saying that we are using the scanf printf function, correct? Normally we are using the scanf printf function, but for accessing this particular function we have to use a terminal. टर्मिनल यानी आपकी जो स्क्रीन है, आउटपुट के लिए आपको जो स्क्रीन दिखती है वो हम यूज़ करते हैं. बट बहुत बार ऐसा होता है कि आउटपुट जो रहेंगे वो स्क्रीन पर नहीं फिट हो सकते, उससे ज़्यादा आउटपुट अगर मिलता है, जैसे आई डोंट नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट समवन uses the addition of a odd number, then printing the some shape. So ये जो shapes है, ये जो चीज़ें हम जो CP डिस्कशन ग्रुप में हमने देखे थे, ट्रायंगल बनाया था, रेक्टेंगल ट्रायंगल, तो उसमें जो वैल्यूज़ देते हो आप 100 तक 150 तक वो ऑक्यूपाई कर लेता है, वो आपके स्क्रीन पे दिखा देता है. बट अगर हम 500 वैल्यू अगर लेते हैं फॉर लूप में, कुछ अगर प्रिंट करना है, हमको स्टार प्रिंट करना है, % प्रिंट करना है, डॉलर साइन प्रिंट करनी है, और 500 उसको वैल्यू दे दी हमने फॉर की, i इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 500, i प्लस प्लस, प्रिंट एफ में हमने डॉलर की साइन दे दी. इन दैट केस व्हाट हैपन, योर आउटपुट विल नॉट बी शोन ऑन द सिंगल स्क्रीन. स्क्रीन तो एक ही है, उसकी दूसरी स्क्रीन लगा नहीं सकते, तो उसी स्क्रीन पे आपका कुछ डेटा मिस हो जाएगा, कुछ डेटा दिखेगा आपको. सो फॉर दैट वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ अ फाइल. In the doc file we are have a number of pages, in the excel file we are having a number of sheets, sheet 1, sheet 2, sheet 3. In a pptx file, powerpoint presentation file, we are having a number of slides, correct? So that file concept came into the account in a picture, that we can store the data in a secondary storage device, that is a hard disk. जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, जैसे स्क्रीन विजिबल नहीं है ना, नाउ स्क्रीन इज विजिबल.
Now this value of a equal to 55, value of b equal to 55, ठीक है। तो ये अगर मैं सिस्टम शट डाउन कर दूं या मेरी सिस्टम बंद हो गई ड्यू टू सम रीजन, तो ये आउटपुट मुझे फिर से मिलेगा क्या? नो सर। सर्टनली नॉट। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दिस आउटपुट इज रन एंड स्टोर्ड टेम्पररीली इनटू द प्राइमरी मेमोरी। बराबर है? यस सर, इन रैम। हाँ, yes, it is stored into the RAM. But if we use the file concept, we can store that output as well as the program into the secondary storage. And secondary storage is nothing but the permanent storage that is called as a ROM, read only memory. Hard disk. हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में हम उसको सॉलिड डिस्क, हार्ड डिस्क। यस, उसमें हार्ड डिस्क में आप वो प्रोग्राम स्टोर करके रख सकते हो, उसका आउटपुट भी स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। सो दैट मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ फाइल कंसेप्ट, दैट इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फाइल, करेक्ट। Then another topic is opening, closing, some operations that can be performed on the file, such as f open means फाइल को ओपन करना, f close फाइल को क्लोज करना। f open का मीनिंग क्या होता है? इफ द फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, exist, open that file. if the file is not exist, create that file. जैसे हम राइट क्लिक करके नया फोल्डर बनाते या फिर डॉक फाइल बनाते या फिर कोई भी फाइल हम बनाते हैं, सो दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ अ एफ ओपन। देन एफ क्लोज, जो भी फाइल आपने ओपन की होगी उस फाइल को आपको मेमोरी में से, प्राइमरी मेमोरी से फ्लश आउट करना है, निकाल देना है, सो दैट द नेक्स्ट फाइल कैन बी ओपन, सो नेक्स्ट फाइल कैन गेट द मेमोरी, इनफ मेमोरी, ठीक है। तो उसको एफ क्लोज से आप क्या कर देते हो? फ्लश आउट कर देते हो, निकाल देते हो, वंस देयर वर्क इज कंप्लीटेड। देन देर इज अ गेट सी, पुट सी। गेट सी का यूज क्या है? पुट सी का यूज क्या है? एनीवन? Character, read a character and write a character. रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, राइट अ कैरेक्टर इनटू द फाइल। यहाँ पे गेट सी पुट सी क्या होगा? ये फाइल के रिलेटेड होगा, करेक्ट। ये जो फंक्शन है ये फाइल के रिलेटेड रहेगा। देन गेट डब्ल्यू, पुट डब्ल्यू इज देयर। Integer, read a integer and write a Integer, integer. yes, exactly, read a integer value from the file, put the integer value into the file, ठीक है। Sir, the difference between get C and get W is to only read the character and read the integer, यस, right? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और कुछ सिंटेक्स में डिफरेंस होगा एक आधा, बस, बाकी कुछ नहीं। देन एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, इसका इसके बारे में कोई बता सकता है? Fprintf is used to write the set of data values to a file, and fscanf is used to read the set of data values to a file. मिक्स डेटा वैल्यूज, डेटा वैल्यूज ये Yes, आपने करेक्ट mixed data बोला है, value. डेटा वैल्यूज करेक्ट बोला है, बट इट इज अ मिक्स डेटा वैल्यूज। इफ यू go through the syntax of a f printf or f scanf, तो f scanf can read in a single f printf or f scanf statement character value also, integer value also, float value also. but get c, get w ये ऐसा नहीं करते। गेट सी कैरेक्टर ही रीड करेगा, गेट डब्ल्यू इंटीजर ही रीड करेगा फाइल से, बट एफ स्कैन एफ सभी मिक्स डेटा को रीड कर सकता है, और एफ प्रिंट एफ सभी रीड किए डेटा को, मिक्स डेटा को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। देन और कोई फंक्शन था क्या उसमें? एनीवन रिमेम्बर? Rewind, रिवाइंड, update. रिवाइंड, हाँ, अपेंड, अपेंड, ठीक है। Oh, फाइल, sorry. इफ यू ओपन द फाइल, दैट फाइल शुड हैव द मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी उसमें क्या ऑपरेशन होना चाहिए? लाइक अ रीड ऑपरेशन, रीड ओनली फाइल, जिससे आर, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं हम डबल कोट्स में, ठीक है। और डब्ल्यू अगर है तो वो हो जाएगा राइट ओनली मोड। ए अगर है तो अपेंड, अपेंड यानी क्या? तो ज्वाइनिंग करना, ठीक है, दो फाइल्स के डेटा को ज्वाइन करना, अपेंड। देन if there is r plus, if there is r plus, that is what? Read write mode. If there is a w plus, then write read mode. Then there is a plus, it is append plus read write mode. And if there is a binary file,
So in that case, R plus B, read binary file. If there is a W plus B, write binary file. A plus B, append binary file. Correct. So like that, modes are there in case of a file. Correct. Then Ftail. F tail क्या बताता है? टेल क्या बताता है? टेल म्हणजे बताना, क्या बताता है वो? Correct. Correct position. of the Correct. करंट पोजीशन ऑफ File. फाइल, करंट पोजीशन ऑफ फाइल बताता है एफ टेल, उसका नाम ही टेल है, तो इजीली आप याद कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बिलो मैंने फॉलोइंग आर द Fsig. एफ सी क्या है? क्या F6 पर होता F6 से क्या होता है? Set the position. सेट द पोजीशन, करेक्ट। सीक Set the position of हाँ हाँ, position. यस एग्जैक्टली। सो क्वेश्चन में भी एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है कि दैट टेल और विच आउट ऑफ विच फॉलोइंग, नीचे दिए गए हुए जितने भी फाइल फंक्शंस हैं उसमें से कौन सा फाइल फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो उसमें पूछे जाएंगे एफ प्रिंट एफ, गेट सी, गेट डब्ल्यू, पुट डब्ल्यू, एफ सीक, या फिर कोई और ऑड दे देंगे। ठीक है, एफ टेल के जगहों पे एफ एफ स्ट्रक्चर नाम का कोई फंक्शन दे देंगे, या फिर एफ प्रिंट एफ तो होता है, एफ स्कैन एफ भी होता है, एफ फॉर, ये कोई तो भी दे देंगे कि फॉर लूप इम्प्लीमेंट करना है सेपरेट फाइल के लिए वगैरह, ऐसा कुछ दे सकते हैं। सो वी मस्ट नो दैट द फाइल फंक्शंस। ठीक है, और कोई टॉपिक बचा है 6 यूनिट में से? एनी टॉपिक दैट लेफ्ट? नो? ओके, तो ये पूरे 10-15 मिनट के डिस्कशन में मुझे ऐसा लगा कि मैं वाइवा दे रहा हूँ और सब आप मेरा वाइवा ले रहे हो, राइट? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So- sir. So, Yes, sir. so what is my score? Out of, sir. Out. No, I don't want out of. I want on your scorecard out of. Okay, so that will be the good for me, and that will be the return gift. ठीक है, रिटर्न वैल्यू जो है रहेगी मेरी 0-1 के फॉर्मेट में, मैंने आपको पढ़ाया, एंड देन यू विल गेट गुड स्कोर, गुड मार्क्स एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, सो आई विल गेट द रिटर्न वैल्यू एज अ रिटर्न 1। आई डोंट वांट अ रिटर्न 0। ठीक है, आई वांट अ रिटर्न 1। 1 यानी क्या? 1 का मीनिंग क्या होगा? true. ट्रू मीन्स पल्स आर देयर। ठीक है, True. मीन्स एक्टिव, पल्स मीन्स एक्टिव, एंड 0 मीन्स नो पल्स। यूनिट 1, ठीक है, वो भी हमारा ही सीबी का ही पार्ट है, उसको भूलना मत। यूनिट 1, यूनिट 2, फिलहाल अभी यूनिट 4, 5, 6 बहुत ज़्यादा रिवाइज हो चुके हैं, तो यूनिट 1, 2, 3 दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ट्राई टू रिकॉल इट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Sir, unit 6 से MCQ नहीं मिला। यूनिट 6 से एमसीक्यू, यस यस यस, आई विल प्रोवाइड इट टुडे। आज ही मैं आपको उसके एमसीक्यू दे दूंगा। नोट्स मिल गई होगी आपको यूनिट 6 की? Yes, sir. Yes. Okay, so if any doubt, any question that we have from a unit 6 notes, that you can directly ask with a screenshot on the CP discussion group or in a personal WhatsApp chat. Okay, so अगर कभी ऐसा होता है कि WhatsApp बंद भी हो जाता है, जैसे कल एक पॉइंट रेज किया था सर्च ने, मे भी ऐसा हो सकता है, तो अगर हुआ हो ऐसे समझो, या फिर डेट एक्सटेंड हो गई होगी, जो भी हुआ होगा, so if you want to communicate, so you can directly call, or you can send the mail on the mail id hnwatan
एक सेकंड में पोस्ट कर देता हूँ ये, और ग्रुप पे भी डाल दूंगा मैं. सर HN VPN लावून सुद्धा चालणार नाही का ते? काय म्हटलं? VPN लावून सुद्धा चालणार नाही का ते? चालेल तर पाहिजे. तसं तर व्हीपीएनच्या थ्रू तर चायनामध्ये सगळंच वापरलं जातं. ट्विटर बॅन आहे, लिंक्डइन बॅन आहे, सगळंच बॅन आहे तिथे. तसं HN वाटाने @sipnaengg.ac.in. अगर कुछ भी ऐसी क्वेरी रहती है कि व्हाट्सएप के थ्रू अगर नहीं हो रहा है तो वी कैन स्विच टू द दिस पर्टिकुलर मेलिंग, एंड वहाँ पे हैंगआउट भी है. हैंगआउट के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं इफ देर इज अ इशू इन द व्हाट्सएप. ठीक है. देन देर इज अ वन क्वेश्चन, सर वाइवा में क्वेश्चंस प्रैक्टिकल से पूछने वाले हैं क्या या फिर कुछ और भी? So definitely I will ask the 5 question from the practical base in the Viva. If you can't answer 50% question, then I can ask the question from the syllabus. 6 यूनिट, 6 यूनिट में से कोई भी पूछ सकता हूँ मैं. प्लस आपको ये भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं डेफिनेटली कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, व्हाट यू प्रिपेयर. सो be prepared with a 2 topics minimum from each and every unit. So 12 topics to 15 topics that you should have with you. So if I ask, then you can tell the name of that topic and their definitions and their internal structure also. Correct? Okay then. So wish you all the best, and our teaching learning process will be stop here, but we will stay tuned and stay connected through the online mode. So throughout the this semester, if you have any kind of difficulty regarding to the C, or regarding to any kind of point that you want to ask, if you get confused, then you can ask. Plus, whether you are in a any department, you can directly communicate. You have a mobile number, WhatsApp number, you can communicate, you can ask. If you are in a second semester, third semester, or any semester, you can ask anytime. Okay. So anything else? Thank you, sir.